Hello, good evening, everyone. Today we are going to start our session 4 of the summer internship program. So, let me share my screen first. Screen is shared already. Let's start with the PPT. So, in the last session, what we have gone through are the control flow statements, like how we can establish control in our program while writing programs. In that, we have learned about like key what is if, what is the use of if, what is elif, what is else, enough. So there we have seen like how the control basically flows in the program based upon the conditions that the user or the one who is writing the program sets, right? Like we have seen key marks are greater than 98, oh, sorry, 80, then the message should be printed as outstanding. So there the program is performing based upon the condition that you have provided. Okay. So only in the last session we have seen na ki So in the last session, as we have seen, based upon the condition, we can control the flow of our program. Like these statements are need to be executed only if a certain condition is satisfied. Means the result of that particular condition is true. Like we have seen कि अगर 80 से बड़ी value है, then it will return as true. Only after that you have to execute all the lines that are present in that if block. Otherwise, you have to skip those lines and go to the other part of the program. So there we have seen ki how control flow works. Today we are going to see कि what are loops, है ना? जैसे कि loop word already stand for कि किसी चीज को बार बार repeat करना till a certain period of time. So today we are going to see like how the loops work in programming language, and it is very important to learn these concepts like what are conditional statements. If you have understanding of the conditional statements, then only you will be able to understand loops. है ना? तो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर कि एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आ गया देन लूप पार्ट इज वेरी इजी. तो लूप में कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट ए रिपीटेशन ऑफ सेम टास्क अगेन एंड अगेन till the condition is basically the value of condition that you will be setting results as a false. Till it is not giving a false as the value, then the that same task will be repeated. We will be seeing through a practical, that way it will be very easier to understand. So first, let's see what are loops. So loops help execute a block of code multiple times automatically. Okay, they make repetitive tasks simple and efficient. So that is what I was saying कि जो पर्टिकुलर लाइन्स है, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास 4 से 5 कोड की लाइन है दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन टिल द कंडीशन इज फॉल्स, है ना? तो सेम टास्क को रिपीट करना अगेन एंड अगेन कि आप रोज सुबह लाइक यू आर गेटिंग अप फ्रॉम योर बेड, getting ready for your school, then you are going to your school or colleges, then after your school college get finished, so you came again to home, then नेक्स्ट डे सेम रूटीन की आप फिर से उठोगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर सो जाओगे, फिर उठोगे ना. तो ये कब तक चलता है? टिल योर ग्रेजुएशन कंप्लीट्स और योर टिल योर बेसिकली 12th क्लास कंप्लीट्स और फाइनल एग्जाम्स आर गिवन. आफ्टर दैट अ सर्टेन कंडीशन इज स्पेसिफिक फुलफिल्ड, लाइक कि हाँ आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, यू हैव कंप्लीटेड 4 years ऑफ योर ग्रेजुएशन. तो अब क्या होगा? यू विल ट्रांजिट इनटू नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, दैट इज बेसिकली सर्चिंग द जॉब्स और लाइक डूइंग IT jobs or any other type of job that you want to do. तो एक कंडीशन लग गई, देयर इज अ कंडीशन विद योर पाथ दैट यू आर टेकिंग. it since one condition is satisfied, like कि your graduation is completed, then only you will be able to find the job, है ना? तो you are dependent on that particular condition. जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तुम्हारी सेम साइकिल चलती रहेगी 4 years तक कि एक बार उठोगे, फिर कॉलेज जाओगे, फिर आ जाओगे, फिर जाओगे, है ना? तो सेम टास्क विल गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन. So we will be seeing that real life example in this code today. So it's very interesting to know how loops basically works. So if you have gone through basic programming concepts of C or C++, then it is very easy to understand loops because there you have already seen how they work.
And even please don't worry if you haven't heard about the loops before this. So we will be going to cover in today's session. So why use loops? So why should we use loops? Because automate repetition. Like there are certain tasks कि आपको same code बार बार नहीं लिखना. Suppose someone has told you कि you have to print number 10 times, or you have to print your name 10 times. तो उसके लिए क्या करोगे? Like in Python, how can we print the output? अपने को function लिखना पड़ता है कि like print function लिखेंगे, and then we have to write our message that we want to print in our console in that particular function. तो उसको क्या करना पड़ेगा? उस सेम प्रिंट स्टेटमेंट को यू हैव टू राइट 10 टाइम्स कि प्रिंट देन योर नेम, फॉर एग्जांपल माइन इज रजत, है ना, तो लाइक प्रिंट रजत. तो यू हैव टू राइट 10 टाइम्स सेम कोड, सेम लाइन, सेम फंक्शन, यू हैव टू राइट 10 टाइम्स. व्हाट इफ इट इज 100 टाइम्स? व्हाट इफ इट इज 1000 टाइम्स? तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. लाइक यू आर डूइंग अ लेबर टाइप ऑफ वर्क कि बस तुम काम किए जा रहे हो. यू आर नॉट डूइंग ए स्मार्ट वर्क कि हाँ 1000 टाइम्स रिजल्ट आएगा, 1000 टाइम्स प्रिंट फंक्शन लिख के प्रिंट कराने पे. बट व्हाट विल हैपन इज लाइक कि तुम्हारे जो कोड है उसका साइज इंक्रीज होता चला जाएगा, है ना. एंड देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोड विल ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. तो it will become very complex, and at later on at some stage or some point of time ki it will become very hard to debug that particular code. So that's why we use loops. The same certain lines or piece of block that is needed to be repeated again and again till our condition is met. So at that point of time we use loops. तो ऑटोमेटेड रिपीटेशंस हो जाते हैं. रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन, लाइक आई टोल्ड यू कि प्रिंट को आपको 1000 टाइम्स नहीं लिखना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू राइट इट वन टाइम इनसाइड अ लूप, and then specified a number ki till 1000 repetitions are completed you have to run this particular section again and again and again. So Python will do its own, and then 1000 results will get printed in the console, है ना. तो what has happened here कि कोड का जो डुप्लीकेशन है, द मैनुअल लेबर दैट यू विल बी डूइंग विल गेट रिड्यूस. ओके. तो मेक प्रोग्राम्स फास्टर एंड क्लीनर. Hello, sir. Sir, हाँ. या sir, can you explain it again? The reduce code duplication. ओके. तो लेट मी शो यू विद एन एग्जांपल, है ना, इट विल बी वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड. कि सपोज करो मुझे ना प्रिंट स्टेटमेंट का ये हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंट करना था, और मैंने बोला ये 1000 टाइम्स मेरे को प्रिंट करना है. तो मेरे अभी जो लाइक दिमाग में आता है कि हाउ आई विल बी एबल टू प्रिंट दिस 1000 टाइम्स. तो इसको क्या करना पड़ेगा? सेम प्रिंट स्टेटमेंट को मुझे 1000 टाइम्स लिखना पड़ेगा. कि लाइक ये फॉर एग्जाम्पल भी 10 टाइम्स ले लो कि ये लिखा, फिर उसके बाद फिर लिखा, फिर उसके बाद फिर लिखा, है ना. तो इस तरीके से आप उसको लिखते चले जाओगे. लेकिन कब तक? 1000 टाइम्स लिखना पड़ेगा, है ना. अब इसमें क्या था कि डुप्लीकेशन, रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन हो रहा है. अब आप एक चीज अगर यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ क्या हो रहा है कि प्रिंट स्टेटमेंट का मतलब फंक्शन सेम है, फंक्शन के अंदर मैसेज सेम है ना. और द वे यू आर वांटिंग द आउटपुट टू गेट प्रिंटेड इन द कंसोल इज ऑल्सो सेम, मतलब हर चीज सेम है. तो यहाँ देखो ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा कि एवरी वर्ड, एवरी लेटर, एवरीथिंग इज सेम. तो अगर इसको 1000 टाइम्स लिखना हो तो कितना बड़ा कोड हो जाएगा? 1000 लाइन्स ले लेगा. लेकिन अगर लूप से करेंगे तो लूप में ना अपन को एक ही बार ये लाइन लिखनी है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड. उसके बाद उसको लूप के अंदर डाल देंगे, वो देखेंगे अभी कैसे डालते हैं लूप के अंदर. वो फिर सिर्फ 2 लाइन के अंदर वो पूरे 1000 टाइम्स प्रिंट कर देगा. कहने का मतलब है कि यहाँ इसके ऊपर आप एक फॉर लूप लगा दोगे, ठीक है. और इसके बाद ये जो सेकंड नंबर की लाइन है फॉर लूप के अंदर आ जाएगी. एंड देन दीज 3 to 6 लाइन विल गेट रिमूव, है ना. तो एक ही लाइन लिखी, ऊपर आपने लूप लिखा, एंड देन यू हैव स्पेसिफाइड लूप के अंदर कि टिल 1000 इज मेट यू हैव टू रन दिस कोड अगेन एंड अगेन. तो डुप्लीकेशन रिड्यूस हो गया. सेम स्टेटमेंट, सेम पीस ऑफ कोड, you don't have to write 1000 times. You only have to write one time, and Python will take care of it. Okay, Niku, understood? Okay, sir. Thank you. एंड वन मोर थिंग, लाइक कि ये जो है ना आप 1000 टाइम्स लिखोगे तो देन इट विल कीप द साइज ऑफ दिस कोड गेट्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, है ना. जैसे आप आंसर लिख रहे हो, यू है ना, अपने एग्जाम में. तो आपने 4 पेजेस का आंसर लिखा, but in those 4 pages you have written the same line, same code again and again. मीन कि आपसे पूछा गया कि
टेल मी अबाउट योर सेल्फ और टेल मी योर नेम, है ना. तो यू हैव रिटन कि माई नेम इज सो एंड यू हैव रिटन दैट पर्टिकुलर लाइन इन ऑल द थ्री पेजेस. तो अब ऑल्दो आंसर एक ही लाइन का था, बट उसको आपने बार बार वो सेम चीज लिख दी. आंसर गलत नहीं है, योर आंसर इज नॉट रॉन्ग हियर, है ना. कि हाँ भी मैं नाम पूछा था, ये थोड़ी ना बोला था कि यू हैव टू राइट इन ओनली वन लाइन, आई कैन राइट इन 1,000 लाइन्स ऑल्सो. अब क्या हुआ, टीचर का हेडेक बढ़ गया. ही हैज टू चेक ऑल द थ्री पेजेस कि कहीं पे कोई एक ऐसी लाइन तो नहीं है जहाँ पे अपने नाम की जगह किसी और का नाम लिख दिया हो, है ना. तो ओवरहेड बढ़ गया, मीन्स प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया. मतलब उसको जो चेक करने में टाइम लगता है एक लाइन के आंसर को, अब उसको 1,000 बार देखना पड़ेगा कि कहीं कोई एक पर्टिकुलर लाइन ऐसी ना हो कि वेयर यू हैव रिटन समबडी एल्स नेम, लाइक किसी और का नाम लिख दिया हो और टीचर हैज मार्क्ड ओके इट इज करेक्ट. तो उसको अब 3 पेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा. अब इससे क्या हुआ, एक तो कोड डुप्लीकेशन हुआ, मीन्स सेम लाइन सेम आंसर यू हैव रिपीटेड ऑन 3 पेजेस ऑफ योर आंसर शीट. अब टीचर को 3 पेजेस चेक करने में टाइम भी लगेगा, मतलब प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया, इवेल्यूशन टाइम बढ़ेगा. अब जब वो 3 पेजेस लगे, अब कहाँ एक लाइन है ना, अब कहाँ 3 पेज. तो यानी कि मेमोरी का जो स्पेस कंज्यूम हुआ वो भी ज्यादा हो गया. लाइक यू हैव यूज 3 शीट्स ऑफ पेपर इंस्टेड ऑफ वन लाइन, जस्ट वन लाइन ऑफ अ पेपर. तो उससे क्या हुआ, सिंस द साइज इज इंक्रीजिंग, सो द मेमोरी दैट इट विल टेक विल कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. जो मेमोरी में वो साइज लेगा वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा. तो ये कुछ डुप्लीकेशंस वाली चीजें आ जाती हैं उसके साथ. Okay, sir. Thank you. हाँ. तो इसलिए अपन को क्या होता है कि लाइक दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज लूप्स, है ना, इन प्रोग्रामिंग टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड, टू रिड्यूस द डुप्लीकेसी एंड मेक्स प्रोग्राम फास्टर. फास्टर कैसे, क्यों, एक लाइन का आंसर होगा, देखा ठीक है, चेक, मार्क्स दे दिए, छुट्टी, है ना. तो उस वे में ये काम करता है. तो प्रोग्राम की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों, टीचर को उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा. ही जस्ट हैज टू चेक वन लाइन, give you the marks and we'll move on to another question. So there are certain types of loop in every programming language, not in Python only. कि ये loop जो है ना हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहने वाले हैं. ओनली द थिंग इज कि इनका सिंटेक्स चेंज हो जाएगा, बट अदरवाइज द मेन डेफिनेशन और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दीज विल रिमेन सेम irrespective of the programming language that you are using. So suppose in Python we have for loop, while loop, and there is also one loop की like do while loop, है ना. तो do while loop अपन Python में इतना नहीं पढ़ते हैं, आई थिंक इन दिस स्लाइड भी, नो, इसमें नहीं है. तो डू वाइल क्या होता है, डू वाइल सी, जावा, सी प्लस प्लस उसमें ज्यादा यूज होता है. तो वो एंट्री कंट्रोल लूप हो जाता है. बट वी विल सी कि अभी बेसिक देखते हैं कि हाउ दीज लूप्स बेसिकली वर्क. तो फॉर लूप में क्या होता है कि लाइक फॉर लूप इज यूज व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स टू आइटरेट. ओके. सब लूप्स में कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है. अब फॉर एग्जांपल हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू आइटरेट का मतलब हो गया कि 1,000 टाइम्स मेरे को आइटरेट करना है, तो आई नो कि मेरे को 1,000 टाइम्स इस लूप को चलाना है. while loop is used when you loop until a condition becomes false, है ना. कि till a condition is false you have to keep performing these set of tasks. तो उसके अंदर वो कितने ही तुम लेकिन इसमें भी एक कंडीशन बेस्ड हो जाता है, तो थोड़ी सिमिलर सिमिलर है, लिखने का तरीका अलग हो जाता है. वी विल सी दीज थ्रू एग्जाम्पल, है ना. तो पहले देख लेते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है. तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है कि यू हैव टू राइट अ वेरिएबल, ठीक है. मतलब फोर देन वेरिएबल देन इन इज अ कीवर्ड दैट वी हैव यूज्ड अर्लियर इन द अर्लियर सेशंस. यू हैव सीन कि आई हैव स्पेसिफाइड व्हाइल वी वर गोइंग थ्रू नेमिंग कन्वेंशन ऑफ वेरिएबल्स ना. तो देयर वी हैव सीन कि जो पहले से प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक इंट हो गया, फ्लोट हो गया, इन हो गया, नॉट इन हो गया. तो दोज वर्ड्स यू कैन नॉट यूज एज वेरिएबल नेम्स. There we have discussed this in is a pre-built keyword key like uh, pre-built keywords that are pre-built in Python. मतलब उसको आप यूज नहीं कर सकते, इसको रिजर्वेशन मान लो एक तरीके से कि these seat are fixed और these keywords are fixed for Python, कि उनको वो एक ही मीनिंग में ट्रीट करेगा. इनका मतलब उसके अंदर चेक करना, उसके इनसाइड वो देखेगा कि क्या हाँ इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं. पहले एग्जांपल देख लो कि 4 आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, है ना. सिंपल से एग्जांपल है. अब देखो दिखाते हैं इसको करके.
तो देखो अब क्या होता है, अगर पहले आपको कोई भी वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर करते हो तो उसमें कुछ भी ले लो, जैसे नंबर ले लिया, तो उसमें आपको 5 लिखना पड़ता था, तो ये वेरिएबल नेम हो गया। अब मैं क्या बोल रहा था कि यू कैन नॉट यूज इन एज एन वेरिएबल नेम, क्योंकि इन जो है पाइथन के अंदर एक अलग मीनिंग डिफाइन करता है। तो यू कैन सी हियर कि लाइक द रेड लाइन इज कमिंग, तो वो एरर आ रहा है कि एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन वाला सिस्टम करके, है ना, इसके साथ इनके साथ अगर तुम कुछ और लिख दोगे ना, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो ठीक हो जाएगा। तो you can't use all the pre-built or predefined keywords that are present in any programming language, not in C, not in C++। तो उसमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो प्री बिल्ड कीवर्ड्स हैं उनको आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो वेरिएबल नेम अपन वैसे भी यूज नहीं करने वाले हैं, वी विल सी दैट वेरिएबल नेम लेटर, है ना। तो इसमें क्या होगा, लाइक फोर लूप के लिए आपको पहले फोर लिखना पड़ता है। देन ये ना पाइथन इसको पहले ही रिकमेंड करने लगता है, लेकिन अपन देखते हैं कि फॉर आई, आई वो वैल्यू में स्टोर करेगा आई इन, ठीक है। और जैसे कि ये रेंज 10 बोल रहा है, तो रेंज 10 एक फंक्शन होता है, इसमें इसका भी बताऊंगा अभी। नहीं तो तुम टैब करके भी इसको कंप्लीट कर सकते हो, एंड देन प्रिंट टैब। ये बहुत बेसिक फंक्शन होता है पाइथन का। अभी देखते हैं इसको कि अब देखो ये होगा क्या। बाय डिफॉल्ट आई की जो वैल्यू रहती है ना, वो जीरो रहने वाली है। पहले रिजल्ट देख लेते हैं कि रिजल्ट कैसे आ रहा है। ओके, सेव नहीं करा, है ना। तो ये देखो हुआ क्या, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं अभी के लिए। अब अपन ने उसको पाइथन को बोला, मैं तुम्हें थोड़ा हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है, देन वी विल स्विच बैक टू इंग्लिश ऑल्सो, कि लाइक पाइथन ने उसको बोला, एक स्टोरी की तरह समझना इसको, कि प्रोग्राम या फिर पाइथन वाला प्रोग्राम, यूजर ने पाइथन को बोला कि फॉर आई इन रेंज 10, मतलब जब तक आई की वैल्यू 10 के अंडर है, मीन्स 10 के नीचे नीचे है, यू हैव टू प्रिंट आई की वैल्यू। तो प्रोग्राम में देखते हैं, पहले थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए तो बताना प्लीज। तो इसने बोला कि आई जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट जीरो है, ठीक है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आई जिसकी वैल्यू जीरो है, इसकी वैल्यू जब तक प्रिंट करनी है, यहाँ पे वी हैव स्पेसिफाइड कि प्रिंट आई, है ना, इसकी वैल्यू तब तक प्रिंट करनी है जब तक कि ये 10 के बराबर ना हो जाए। और ये काम कैसे करता है कि फोर लूप में आई की वैल्यू हर बार +1 होती चली जाएगी, ठीक है। तो अभी देखो कि आई की वैल्यू जीरो है, तो पाइथन क्या करेगा, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा जीरो। अब आई +1 हो जाएगा, ये बैकग्राउंड में होगा, आपको दिखेगा नहीं, ये बैकग्राउंड में होगा। अब ये मतलब इंक्रीमेंट होती चली जाएगी आई की वैल्यू। तो आई +1, ठीक है। अब आई +1 हो गया, ये तुम्हें लिखना नहीं है, पाइथन खुद करता है। आई +1 इधर गया, फोर वाली लाइन में आया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है, कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि क्या ये 10 से छोटी है। 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो यानी कि आई की जो नेक्स्ट वैल्यू बन गई थी वो बन गई थी आई = 0 + 1, और इसका अगर टोटल देखें तो आता है 1, ठीक है। तो इसने चेक किया कि इज आई <10। जी हाँ, आई जो है वो 10 से छोटा है, तो इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ आई। अभी आई की वैल्यू क्या है, 1, तो इट विल प्रिंट 1, जो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फिर से लूप चली। अब इस लूप में क्या हुआ कि आई की वैल्यू जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू क्या है 1, उसमें फिर से +1 करेगा, और +1 के बाद वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो वो इधर गया रेंज वाले फंक्शन पे, इन जो कर रहा है ना, इन चेक कर रहा है कि आई इन रेंज, ये इस लाइन का मतलब हो गया कि आई क्या 10 के अंडर अंडर है। तो अभी आई की वैल्यू अपनी कितनी है, 2, तो कंडीशन होगी ट्रू। तभी मैं बोल रहा था कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स यू हैव टू अंडरस्टूड फर्स्ट बेसिकली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दिस फोर लूप्स वर्क। तो अब हाउ इट इज चेकिंग हियर कि आई की वैल्यू इज 2, देन इट इज चेकिंग कि आई की वैल्यू 2 इज लेस देन दिस 10, देन इट इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू एज 2। ओके। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि अभी आई की वैल्यू अपनी कितनी है, 2 है, इट विल रन अगेन। तो अब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू को करेगा ये 2 + 1 = 3। अब करंट वैल्यू क्या हो गई आई की, 3, ये इधर जाएगा फोर लूप वाली लाइन में, आई की वैल्यू 3 है,
थ्री इन रेंज 10, हाँ इट्स ट्रू। तो उसने थ्री वैल्यू प्रिंट कर दी। अब ये ना इसी तरीके से इंक्रीज होते 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 डैश डैश कर लो एक तरीके से, है ना। तो जैसे कि ये बस ऐसे ही लगा दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं सीधा उस केस सिनेरियो पे जहां आई की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो एक टाइम पे आई की वैल्यू क्या रहेगी कि 8 हो गया, 8 + 1 हो गया, ठीक है। तो 8 + 1 हो गया। तो अब 9, 8 आई की वैल्यू क्या होगी, इट इज 9। आई की वैल्यू इज 9, ठीक है। अब 9 हो गई, ये फिर इस कंडीशन पे आया कि क्या 9 इज अंडर 10। यस, 9 इज अंडर 10, तो इसने आई की वैल्यू 9 प्रिंट कर दी। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ये क्रूशियल स्टेप है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, अभी आई की वैल्यू अपनी क्या है, 9। तो आई को क्या करेगा, ये आई इक्वल टू 9 + 1, देन इट विल बिकम 10। अब जब ये इधर आएगा फोर लूप पे चेक करने के लिए, आई की वैल्यू 10 है, क्या इन रेंज 10 है, नो। 10 से नीचे नीचे होनी चाहिए, 10 के बराबर ही, 10 से ऊपर नहीं। एज सुन एज दिस कंडीशन अराइव्स कि आई की वैल्यू इज 10, तो फोर लूप का जो आंसर आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, इट विल कम एज फॉल्स, जैसे कि हमने इफ वाले ब्लॉक में देखा था। और जैसे ही आंसर फॉल्स आएगा, द प्रोग्राम फ्लो विल कम आउट ऑफ दिस फोर लूप, मीन्स कि हमारा प्रोग्राम वहीं पे एंड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ फोर लूप वर्क्स एंड एवरी अदर लूप वर्क्स। बस लिखने का तरीका इज डिफरेंट, बट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दीज लूप्स इज दिस ओनली, कि टिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स यू हैव टू रन द लूप अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और अब तुम खुद सोचो कि अभी तो मैं आई प्रिंट कर रहा हूं, लेकिन मैंने तुम्हें बोला था कि फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो 10 टाइम्स, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं आई प्रिंट करता ही नहीं है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। तो इसको सबको क्लियर कर देते हैं वरना एरर आएगा। कंट्रोल एस। अब रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखो यहाँ, है ना, जो मैं बोल रहा था कि लाइक डुप्लीकेशन विल बी रिमूव्ड, कॉम्प्लेक्सिटी विल बी रिमूव्ड एंड ऑटोमेशन विल बी देयर, है ना, प्रोग्राम फ्लो विल बिकम फास्टर, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे खुद एक्सप्लेन हो जाएंगे। हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हुआ है वो 10 टाइम्स प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व हेयर कि वी हैव रिटन प्रिंट स्टेटमेंट ओनली 1 टाइम, नॉट 10 टाइम्स। Earlier, in order to print hello world 10 times, what we have to do is कि we have to write the print statement 10 times. Okay, but here we have written only 1 time as you can see in the code, और वो भी सिर्फ 2 लाइनों में। कोड देखो अपना कितना बड़ा है, ओनली 1 and 2 लाइन, मतलब ओनली 2 लाइन्स आर देयर इन आवर कोड, एंड द रिजल्ट इज 10 टाइम्स, मतलब 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अरे उसको 1000 टाइम्स करना हो कैसे करोगे, है ना, हाउ यू विल बी एबल टू डू इट। बस यहाँ पे जो वैल्यू है 10 को 1000 कर दो। सोचो 2 लाइन के कोड में द रिजल्ट इज गेटिंग प्रिंटेड 1000 टाइम्स, है ना। So this is how the code duplication and the size of the code is being reduced after using a loop. Whether it is while loop, for loop, it doesn't matter. The thing is कि you are able to automate your task and certain line of and you are able to execute certain piece of your code in your program again and again. तो उसके deduplication reduce हो जाता है। नो वन वॉन्ट्स टू राइट सेम आंसर अगेन एंड अगेन। अगर टीचर पनिशमेंट देते हैं कि यू हैव टू राइट एन essay ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग 10 टाइम्स, यू योर सेल्फ विल गेट एग्जॉस्टेड। तो सिमिलर थिंग इज देयर कि कोई भी डुप्लीकेशन चीज, डुप्लीकेशन इज नॉट गुड इन एवरीथिंग, है ना। इन प्रोग्रामिंग you have to use as much less code as you are able to use and are able to generate the same results as 1,000 lines of code will be generating. That's what makes a professional programmer different from a beginner. But those things will come by practice, to be frank. Even
today, like when I was doing my graduation, at that time also these things look very attractive, but practice is what makes you perfect, like how to reduce the size of the code. No one will be able to uh, basically help you in this thing, है ना? So even today also, like I am also learning, so I am not so much perfect as there are many other guys. So like, but the thing is कि you need to clear your basics first before moving to anything advanced, है ना? So like my basics are clear, so then I will be able to understand the flow of the program and the way how I have to refactor my code. These things come when you start developing larger projects, but for now please stick to the basics, clear your concepts of the basics and then move forward, है ना? Like there are many coding platforms, so after this internship is completed you can go to those platforms and start practicing the questions. Start from the very easy problems, then move to the medium and then hard. Then this programming will become very easy for you. तो एज यू कैन सी कि 1000 टाइम्स प्रिंट करना है तो ये 1000 टाइम्स प्रिंट कर देगा, बस वी हैव टू हिट एंड रन एंड देन द आउटपुट विल गेट प्रिंटेड 1000 टाइम्स इन द टर्मिनल. दिस इज हाउ loops work, and this is how we can say कि loops are so much powerful. तो ये for loop हो गया. Then comes the while loop. Same काम है while loop का भी, like while loop also does the same work as the for loop. There are बस difference क्या है कि here there you are not able to see the condition that you are specifying in the for loop. कि मैंने बोला ना background में वो check कर रहा है I in range, तो that is written in high level language. High level language भी consider as English language, ठीक है? लेकिन यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, ये कंट्रोल फ्लो तुम्हारे समझ में आएगा. इसको अपन क्या लिख सकते थे, लाइक वी कैन राइट इट एज कि if I is less than equal less than 5, then print I and I plus 1 equal to 1, है ना? तो ये कंट्रोल फ्लो वाला स्टेटमेंट बन जाता. अब बस अपन ने व्हाट इज द डिफरेंस हियर कि इफ को हटाया, वी हैव रिमूव्ड इफ एंड हैव पुट द कीवर्ड व्हाइल और 5 लिख दिया. अब ये लूप बन गया. मतलब अब इसके अंदर आप जो भी स्टेटमेंट्स लिखोगे, वट एवर स्टेटमेंट्स यू आर राइटिंग इन साइड दिस वाइल लूप will get executed till this condition becomes false. ठीक है? और इसमें दिक्कत हो जाती है while loop में. There is a very big problem with while loop that I will be explaining you through code only, because it is very easier to understand by seeing through code how it is working. तो like अभी अपन क्या करते हैं, let's take the value of I equal to 0, then we will put key while I is less than, sorry, I is less than 5, ठीक है? और इसके बाद ये स्टेटमेंट्स आ गई है, तो ये ठीक है. अब देखो यहाँ हाउ दिस थिंग इज बेसिकली वर्किंग हियर. उससे पहले लेट्स चेक कि प्रिंट पहले ना एक मैसेज करा लेते हैं, लाइक ताकि इफ का भी रिवीजन हो जाए. ओके, तो नाउ एज यू कैन सी हियर कि आई की वैल्यू 0 है, वाइल लूप में आया. अभी मैं यहाँ पे इफ लगा रहा हूँ. आई एम एक्सप्लेनिंग यू द यस्टरडेज कॉन्सेप्ट फर्स्ट. So if I is less than 5, then we are saying program to print hello world. And अभी I plus 1 ये करा रहे हैं. इसके बाद अगर आप देखना चाहो I की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, तो then you can write print I, है ना? तो अब इसको ना रन करके देखते हैं एक बार. लेट्स रन इट. अब देखो हुआ क्या, एक ही बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ और आई की वैल्यू आप देख सकते हो कि 0 से 1 हो गई है, क्योंकि वी हैव टोल्ड पाइथन की आई प्लस 1. अब ये दो तरीके हैं लिखने के इसको भी. यू कैन राइट इट लाइक आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है? या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, और देर इज वन अदर वे. दोनों सेम है, एवरीथिंग वर्क्स हियर. ओके, तो यू कैन राइट कि आई प्लस 1, ठीक है? इस तरीके से भी तो मतलब यही हो गया कि आई के अंदर आप प्लस 1 कर रहे हो. ओके, तो आई की वैल्यू दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग अपग्रेडेड टू 1 एंड हेलो वर्ल्ड इज गेटिंग प्रिंटेड. अब व्हाट वी विल बी डूइंग हियर इज कि वी विल चेंज दिस इफ टू व्हाइल. ओके, अब इस इफ को चेंज कर देते हैं व्हाइल वर्ड से. बस इतना चेंज करना है एंड देन यू विल सी द मैजिक, ठीक है?
अब ये अपन ने वी हैव डन दिस, वी विल सेव द प्रोग्राम अगेन and then we will go to the console and then we will run the test. Now you can see here कि what is happening. ये देखो अब hello world जो है ना, the hello world statement is getting printed 5 times. हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। और यू कैन सी कि आई की वैल्यू भी कैसे चेंज हो रही है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, ठीक है, अपने प्रोग्राम को क्या करना है, अपना प्रोग्राम विल चेक आई की वैल्यू पहले 0 थी, 0 इज लेस देन 5, यस 0 इज लेस देन 5, देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो अपने प्रोग्राम वो व्हाट आर प्रोग्राम हैज डन कि इट हैज प्रिंटेड हेलो वर्ल्ड मैसेज। देन इट हैज मूव टू दिस स्टेटमेंट, इट हैज अपग्रेडेड द वैल्यू ऑफ आई कि आई की वैल्यू क्या होगी 0 + 1, यानी कि 0 थी पहले, अब 0 से इसकी वैल्यू अपग्रेड होके क्या हो गई है 1, यानी आई वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू 1 इनसाइड इट नाउ, नॉट 0। दैट्स व्हाई वी हैव प्रिंटेड द अपडेटेड वैल्यू ऑफ आई। तो यू कैन सी कि यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है इन द कंसोल, है ना। सेम थिंग, अब आई की वैल्यू 1 हो गई, देन दिस 1 विल अगेन गो टू दिस वाइल। वाइल क्या हो गया ना, एक ही मेज में बार बार घूम रहे हो। यू हैव सीन इन एनिमे और इन मूवीज और इन मेजेस लाइक भूल भुलैया एक्सेट्रा, है ना, कि दैट यू आर मूविंग इन सेम पाथ अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो वही चीज होती है वाइल ये फॉरवर्ड लगाने से। तो अब व्हाट विल हैपन हियर कि जैसे कि इटाची की गेंजुत्सु हो गई थी, है ना। तो what it is doing here कि like अब I की value it will upgrade it to 2, 2 will go here, then 2 is less than 5, okay 5 है, less than 5 है, तो it will print hello world। again the I value will get upgraded to 3 till 5। अब जैसे ही I की value 5 हुई, as soon as I's value becomes 5, तो दिस 5 वैल्यू विल गेट रिप्लेस्ड हियर। आई देखेगा कि 5 इज लेस देन 5, नहीं 5 इज इक्वल टू 5। हाउ कैन यू से कि 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई ना, तो इट विल कम आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। तो उसके बाद इट विल नॉट एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स, तो वो वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब उसके स्कोप के बाहर आ जाएगा। और वो दिखाऊं अगर वी कैन सी, आई कैन शो यू दैट कि at which point it is coming outside to print, and then we will be printing outside loop। ठीक है, अब देखते हैं कि what are the changes in the result। अब ये देखो, जैसी 5 वाली वैल्यू है उससे पहले आउटसाइड लूप प्रिंट नहीं हुआ। as soon as this while loop is getting over due to the condition which is becoming false, so it will come outside this while loop and then will print this message कि print outside while loop and your program ends it। So this is how while loop and do while loop, oh sorry, while loop and for loop works। Okay, now there is a concept of loops with list. So I will not explain much about list for now because list will come later on, and these are the data structures that are used to store values. But for example, you for now you can understand list as a collection of different values। अभी आप क्या करते हो, in one variable you can store only one value। For example, I have written I की equal to 0, so I can only store one value at a time। In I, wherever I will print I, only one value get printed, that is 0। Suppose there is a name and you want to store multiple values in it, so there you have to use data structures like list हो गया, dictionary हो गया, etc। So like in this list, what you are doing कि you are storing 3 values in under single name, single variable name। तो these square brackets are used to define a list कि what जैसे ही आप ये square brackets put करते हो ना Python में, then Python treat that variable as a list। The type of that particular variable will become a list। जैसे कि हमने देखा था कि for example अभी दिखाता हूँ मैं VS कोड में, है ना। तो इट इज शोइंग कि हाउ कैन यू लूप इन द लिस्ट थिंग। ठीक है, कि लिस्ट के अंदर लूप कैसे कर सकते हैं, हाउ टू ट्रेवल्स दिस लिस्ट, हाउ टू प्रिंट दीज एप्पल बनाना चेरी वैल्यूज, है ना। तो आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए, एप्पल बनाना चेरी।
And great for iterating over list, tuples, or dictionaries. So for loop is used to print the values inside a list that contains many values. So let's see how it is done. अब देखो इधर है ना, तो अभी मैं अगर सिंपल ये सब हटा देता हूँ, तो लेट्स सी द फर्स्ट टाइप ऑफ दिस प्रिंट टाइप आई। ठीक है, आई का टाइप देखते हैं क्या है, क्योंकि आई एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने जीरो स्टोर कर दिया, या फिर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर लो। तो लेट्स सी व्हाट टाइप इज दिस आई, है ना। तो यू कैन सी पाइथन इज सेइंग कि ये इंट टाइप है, यानी इंटीजर है। अब मैं इसी आई की वैल्यू को अगर कुछ स्ट्रिंग लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। और अब वी कैन चेक द वैल्यू ऑफ दिस। तो यू कैन सी कि अब ये एसटीआर है, मतलब एक स्ट्रिंग है। उसी तरीके से अगर मैं किसी भी वेरिएबल के आगे टू स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं। अब इसका टाइप चेक करते हैं। तो यू कैन सी नाउ इट इज टाइप लिस्ट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, दीज स्क्वायर ब्रैकेट्स डिफाइंस द लिस्ट। कि पाइथन जैसे ही देखेगा ना कि द वेरिएबल के आगे यू हैव यूज्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो देन इट विल कंसीडर दैट वेरिएबल एज अ लिस्ट। अब आप इस लिस्ट के अंदर यू कैन स्टोर एनी वैल्यू, स्ट्रिंग, इंटीजर, एनीथिंग दैट यू वांट। सपोज उसके एग्जांपल के हिसाब से अगर अपन देखें, ठीक है, तो लाइक एप्पल, ठीक है, बनाना, चेरी, एक्सेट्रा, एंड देन वी विल ट्रैवर्स इट। पहले मैं इसको ऐसे ही प्रिंट करा के दिखाता हूँ, देखते हैं कि कैसे क्या रिजल्ट आ रहा है अगर अपन लूप नहीं लगाते तो। प्रिंट आई, ओके, नाउ सेव इट एंड देन रन इट। अब ये देखो हाउ द रिजल्ट इज गेटिंग प्रिंटेड, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आ रहे हैं, ठीक है, एप्पल आ रहा है, बनाना आ रहा है, चेरी आ रहा है, बट इट इज कमिंग अंडर स्क्वायर ब्रैकेट्स क्योंकि हम लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं। वी आर नॉट प्रिंटिंग द वैल्यूज इन साइड द लिस्ट, ठीक है। तो वी आर नॉट प्रिंटिंग द वैल्यूज इन साइड द लिस्ट, वी आर प्रिंटिंग द लिस्ट। नाउ इफ समवन टोल्ड यू कि वैल्यू प्रिंट करो लिस्ट के अंदर की, देन यू हैव टू प्रिंट वन वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है। कि फर्स्ट यू हैव टू प्रिंट दिस एप्पल, देन यू हैव टू प्रिंट दिस बनाना, देन यू हैव टू प्रिंट दिस चेरी। तो दिस इज हाउ दीज वैल्यू विल गेट प्रिंटेड। दे आर नॉट सेइंग कि आपको पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है, दे आर सेइंग यू हैव टू प्रिंट द वैल्यूज इनसाइड द लिस्ट। तो हाउ टू ट्रेवर्स, ये लिस्ट में जब पढ़ेंगे ना, देन वी विल डिस्कस इन डिटेल देयर। इट इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक इन इटसेल्फ। तो अब मेरे को एक करके ये वैल्यूज जो है वो मतलब प्रिंट करानी है, ट्रेवर्स करनी है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं लगाऊंगा फॉर लूप, कि फॉर, क्या होगा, ठीक है, फॉर एक्स इन आई, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। ये किया और उसके बाद प्रिंट कर दिया एक्स। अभी मैं बताऊंगा ये काम कैसे कर रहा है, बट फर्स्ट वी लेट्स सी द रिजल्ट। अब देखो, ना कोमाज आ रहे हैं, ओके, ना स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ओनली द वैल्यूज आर गेटिंग प्रिंटेड की एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब ये प्रिंट कैसे हो रहा है, ये एक्स इज अ वेरिएबल, यू कैन राइट एनीथिंग, जो नाम तुम्हें अच्छा लगता हो, इवन यू कैन राइट नम, ठीक है। बट बट अब क्या करेंगे, इधर भी नम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका इशू नहीं रहता है, यू कैन यूज एनी वेरिएबल एज पर योर, जो भी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो नाउ लेट, अब होगा क्या, बस ये जो वैल्यू है ना आई, इट शुड बी सेम एज द नेम ऑफ योर लिस्ट, ठीक है। तो अब समझते हैं इसको कि पाइथन इसको अंडरस्टैंड कैसे कर रहा है, हाउ पाइथन इज एबल टू इंटरप्रेट इट। तो पाइथन इज सीइंग कि ओके, देयर इज अ लिस्ट नेम्ड आई, उसको पता है कि दिस आई लिस्ट कंटेन्स दीज वैल्यूज। नाउ वी आर सेइंग पाइथन की फोर नम। अब ये नम क्या करेगा, ये इस पे आके खड़ा हो जाएगा एप्पल वाली वैल्यू पे, ठीक है। इट विल स्टैंड अपॉन एप्पल, लेट्स सपोज दिस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फ्लो। तो नम इज स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेस, एप्पल्स प्लेस। तो उसने देखा क्या, एप्पल इन आई, है ना, यानी कि
Is this apple value inside the list? Yes. तो कंडीशन ट्रू हो गई. तो देन इट विल प्रिंट नम. नम वेयर नम वाज स्टैंडिंग ऑन एप्पल. तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा i+1. तो द नम्स वैल्यू विल गेट इंक्रीज्ड. ये इंडेक्स होते हैं, ठीक है. तो दिस इज जीरो इंडेक्स, मतलब जीरोथ प्लेस. दिस इज फर्स्ट प्लेस, दिस इज सेकंड प्लेस, ऐसी करके जितने होंगे ये इंडेक्सिंग कहते हैं इसको. दैट वी विल स्टडी इन लिस्ट. तो नाउ फॉर नाउ यू सपोज कि ये इधर आके बस खड़ा हो गया, इट इज स्टैंडिंग अपॉन एप्पल्स प्लेस. नाउ इट हैज बीन अपग्रेडेड, इसकी एक वैल्यू बढ़ गई. नाउ इट इज स्टैंडिंग अपॉन बनाना प्लेस. तो वो क्या आएगा, इधर आएगा, इज बनाना इन लिस्ट. देन इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बनाना, ठीक है. देन अगेन इट्स वैल्यू विल गेट इंक्रीज एंड इट विल बी स्टैंडिंग अपॉन चेरीज प्लेस. तो इट विल चेक क्या चेरी लिस्ट के अंदर है. यस. देन इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ चेरी. नाउ इट्स वैल्यू विल गेट अपग्रेडेड अगेन. अब वो क्या हो गया, अपने इंडेक्स तो थे 0, 1, 2, बट नाउ इट्स वैल्यू हैज बिकम 3. 3 में तो कोई प्लेस ही नहीं है. आर लिस्ट एंड्स एट चेरी चेरी प्लेस ओनली. तो जैसे ही वो इधर आया, इज 3 इन i, तो द कंडीशन इज फॉल्स, तो इट विल कम आउट ऑफ दिस लूप एंड द प्रोग्राम फ्लो विल स्टॉप देयर. तो ओनली एप्पल बनाना एंड चेरी वैल्यू विल गेट प्रिंटेड. दिस इज हाउ लिस्ट ट्रेवर्सल वर्क्स बाय यूजिंग लूप. ओके. अगर ऐसा नहीं करते ना, तो व्हाट यू हैव टू डू, कि उसको तुम्हें एक एक लाइन प्रिंट करानी पड़ती, तीनों वैल्यू प्रिंट कराने के लिए. फॉर एग्जाम्पल कि प्रिंट i=, प्रिंट i, ठीक है. तो यू हैव टू डू दिस, डू लाइक दिस, कि प्रिंट करोगे i की वैल्यू 10. अब इसको देखते हैं कि होता कैसे. ये क्यों आ रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है. अब क्या वैल्यू हो रही है, प्रिंट एप्पल प्रिंट हो रही है, क्योंकि यू आर स्टैंडिंग ऑन जीरोथ प्लेस. जीरोथ प्लेस पे क्या वैल्यू थी, एप्पल, एंड दैट एप्पल वैल्यू इज गेटिंग प्रिंटेड. अब आपको ये तीनों वैल्यू प्रिंट करानी है. तो यू हैव टू राइट अगेन प्रिंट index 1, then you have to print this index 2 and then run the program. अब देखो, एप्पल बनाना चेरी, मतलब 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा था, बट लूप इज डूइंग इट इन वन स्टेटमेंट ओनली. अब मैं मान लो कि मैं आई की वैल्यू फिर से बढ़ा देता हूँ, है ना. अब एरर आएगा, देखना. प्रिंट i3. अब क्योंकि 3 इंडेक्स हमारे इसमें है ही नहीं, क्यों, 0, 1, 2, 3 तो है ही नहीं. तो अब एरर आना चाहिए, यानी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. ये देखो एरर आ गया. इसने क्या बोला, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. कि 3th इंडेक्स जो है, 3rd इंडेक्स जो है, वो आपके लिस्ट में है ही नहीं. इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर लिस्ट. तो इट हैज टू ब्रेक आउट ऑफ दैट लिस्ट. तो दैट इज हाउ वी आर वर्किंग विथ फॉर लूप, कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, तो इट विल स्टॉप द प्रोग्राम फ्लो देयर. अब सपोज करो इस लिस्ट के अंदर 1000 एलिमेंट्स, तो 1000 बार थोड़ी ना प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे. जस्ट राइट द फॉर लूप वंस, इट विल रन 1000 टाइम्स. This is how list traversal works in this. Okay, let's move to the next part. Nested loop, मतलब एक लूप के अंदर लूप, है ना. We have seen it in where we have seen it in the control flow statements also. कि how nested loops, nested if statement works. कि if के अंदर if statement inside and another if statement. तो similar thing is there, कि एक लूप के अंदर दूसरी लूप, है ना. तो उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट होना. अब देखो ये थोड़ा यहाँ पे ना इसका पेपर, इफ यू हैव पेन पेपर ना, इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बट लेट मी एक्सप्लेन यू दिस ऑल्सो. अभी क्या बचा है, ठीक है. अभी यहाँ पे देखना रेंज 1, 3, इसका भी मतलब बताऊंगा कि रेंज 1, 3 का मतलब क्या होता है. वेरी कोड कंट्रोल है. अब करते हैं कि लाइक फोर आई इन रेंज. अभी अपन ने पिछले में लिया था 10, बट नाउ वी आर टेकिंग 1, 3.
ठीक है, अभी मैं पहले एक सिंगल लूप प्रिंट करके दिखाऊंगा। तो अब देखो 1,3 का मतलब क्या होता है कि आई की वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो जीरो रहती है ना। बट वंस वी स्पेसिफाइड 1,3, मतलब अब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो टिल 3, मतलब 3 से नीचे नीचे, 3 एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, तो जो आंसर प्रिंट होगा वो होगा 1,3, 1 और 2, ये दो आंसर प्रिंट होंगे, दो वैल्यूज प्रिंट होंगे। सेव नहीं हुआ क्या? है ना। तो देखो 1, 2 वैल्यू प्रिंट हुई। अब मैं मान लो कि इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ, तो 10 तक, 10 से नीचे नीचे की वैल्यू को ये एक्सप्लोर करेगा। एंड मैं कहता हूँ कि तुम्हें 1 से स्टार्ट नहीं करना, तुम्हें 4 से स्टार्ट करना है काउंट करना। ठीक है, तो अब देखो इसने ना 4 से स्टार्ट करा काउंट करना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से नीचे नीचे। तो ये रेंज इस तरीके से काम करती है, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। इफ यू वांट कि आई की वैल्यू शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम योर डिजायर्ड वैल्यू, देन यू कैन स्पेसिफाई इन द रेंज प्रोग्राम। अब मैं क्या करता हूँ, एक नेस्टेड फॉर लूप बनाता हूँ फॉर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएगा, समझ नहीं आएगा, इसको सिंपल रखते हैं। 1,3 एंड ऊपर वाले की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। 1,3। ठीक है, तो दो ही दो वैल्यू के साथ अपन मतलब प्ले करेंगे यहाँ। और इसके बाद अपन करते हैं प्रिंट आई जे। अब देखो इसका रिजल्ट क्या आता है। अब ये 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 कैसे आया? अब देखो आई की वैल्यू, जब ये लूप चलेगी, ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या रहने वाली है, सिंस वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आई की वैल्यू विल बी 1। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंस कि आई की वैल्यू जो है वो अभी 1 है। ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 है और वो 3 से कम है, तो यानी कंडीशन ट्रू है, देन इट विल कम अंडर द स्टेटमेंट्स दैट आर रिटन अंडर दिस फॉर फॉर लूप। तो दूसरी फॉर लूप है। अब इसमें जे की वैल्यू अपन असाइन कर रहे हैं 1। क्या ये भी 3 से छोटा है? यानी जे की वैल्यू इधर लिख लो, कोमा जे इक्वल टू 1। हाँ, ये भी 3 से छोटा है। तो अभी अपनी आई और जे की वैल्यू क्या है, 1,1। तो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, 1, 1। अब ये बाहर नहीं जाएगा, कब तक, जब तक ये लूप कंप्लीट नहीं हो जाता। क्यों, लूप के अंदर आ चुके हैं, वी हैव एंटर्ड द इनफाइनाइट स्पेस। लेट सपोज दिस, है ना, कि जब तक वी आर एबल टू गेट आउटसाइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्पेस, वी विल नॉट बी एबल टू गो बैक टू द ओरिजिनल स्पेस दैट वी वर हैविंग, लाइक ओरिजिनल फॉर लूप। तो अब क्या, अरे भाई, तो नाउ व्हाट विल हैपन कि अब ये जे, नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जे जे की वैल्यू अपडेट होगी, है ना। तो जे की वैल्यू विल गेट अपग्रेडेड टू 2। ठीक है, अब जे की वैल्यू होगी 2। या 2 3 से छोटा है, यस, 2 इज लेस देन 3, बट आई की वैल्यू अभी भी क्या थी, 1। तो आंसर प्रिंट क्या हुआ, 1,2। अब जे की वैल्यू फिर अपग्रेड होगी, जे की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, अब जे की वैल्यू होगी 3, तो नाउ जे इज वैल्यू इज 3। इट विल कम अगेन इन द जे लूप, चेक, अरे नहीं ये तो 3 से छोटा नहीं है, इट इज इक्वल टू 3, देन द कंडीशन इज फॉल्स। अब ये इस फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये खुद एक लूप का पार्ट था। तो अब इस वाले लूप पे चेक किया जाएगा कि आई की वैल्यू क्या है, देन इट विल सी कि आई की वैल्यू इज 1, देन इट विल अपग्रेड द आईज वैल्यू टू 2। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड 2 इज लेस देन 3। ठीक है, अब जे की वैल्यू 3 ही थी। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि जे की वैल्यू ऑटोमेटिक रिसेट होगी। अब क्योंकि आई की वैल्यू हैज बिकम 2, देन अगेन इट विल कम टू दिस लाइन। नाउ इट विल चेक, अब हम इस पहली पहली जब मतलब इस लूप के बाद जब इधर आएगा ना, तो असाइनमेंट विल हैपन, जे की वैल्यू विल बिकम 1 अगेन, क्योंकि हम उसे असाइन कर रहे हैं जब ये लूप पहली बार यानी फर्स्ट टाइम रन होगा, क्योंकि आई की वैल्यू अपग्रेड होने के बाद ये पहली बार रन हो रहा है। ठीक है, तो जेज वैल्यू विल बिकम 1 अगेन, वी आर रीअसाइनिंग द वैल्यू। अब जे की वैल्यू हो गई है 1, तो वी आर प्रिंटिंग आई कोमा जे, यानी कि 2,1। अब आई की वैल्यू 2 ही है, जे की वैल्यू 1 है, जेज वैल्यू विल गेट अपग्रेडेड टू 2, जेज वैल्यू विल बिकम 2। नाउ इट विल चेक वेदर 2 इज लेस देन 3, यस 2 इज लेस देन 3, देन आई की वैल्यू क्या है 2 और जे की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू फिर 3 हो जाएगी, इट विल सी कि जे की वैल्यू 3 है, यानी फॉल्स हो गई कंडीशन, इस लूप से बाहर आ जाओ। अब इस लूप पे आया,
आई की वैल्यू अपग्रेड हो चुकी है, जैसे ये लूप खत्म होगी, आई की वैल्यू हैज बिकम 3 नाउ, इट विल सी कि हाँ ये क्या, देन 3, नो नो इट इज इक्वल टू 3, तो इट्स वैल्यू विल आल्सो बिकम फॉल्स। यानी अब ये पेरेंट लूप से भी बाहर आ जाएगा, यानी दोनों लूप से बाहर आ गया। तो दिस इज हाउ नेस्टेड लूप्स वर्क। ठीक है। ओके। तो अब इसमें ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं लूप में, बस वो देख लो, उसके बाद एंड करते हैं सेशन। तो एक ब्रेक कीवर्ड होता है, इट इज यूज टू एग्जिट द लूप इमीडिएटली। आई विल शो यू हाउ इट इज डन वेरी क्विकली। तो देन कंटिन्यू, स्किप द नेक्स्ट आइटरेशन एंड पास डू नथिंग। पास का कुछ नहीं है, पास का होना ना होना इज बराबर। ठीक है। तो पास इज लाइक कि यू नो देयर इज समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट। तो पास का कुछ काम नहीं होता है ना। बट लेट्स सी दीज टू कीवर्ड्स की ब्रेक एंड कंटिन्यू, एंड देन वी विल गो टू द असाइनमेंट दैट वी नीड टू टेक केयर। तो बस ये देख लो। तो अब देखो 4i इन रेंज अभी क्या हो रहा है। ठीक है। मैं इधर कर देता हूँ, इसको सिंपल कर देता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, इट्स वैल्यू इज 10। नाउ वी आर प्रिंटिंग आई। ठीक है। अब जब अपन आई प्रिंट करते हैं, व्हाट इट डज कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज प्रिंट हो जाती हैं, बट आई वांट माय प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली वैल्यूज टिल 5। एज सून एज द वैल्यू 5 अकर ना, कम आउट ऑफ द लूप। तो मेरा प्रोग्राम क्या करेगा, उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ, ठीक है, आई वैल्यू बिकम्स 5। ठीक है। तो देन ब्रेक। ब्रेक का मतलब हो गया ब्रेकअप वाला ब्रेक, कि सब खत्म, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है। तो देन यू हैव टू जस्ट कम आउट ऑफ द लूप। तो हेयर व्हाट इट विल डू, जैसे लंच ब्रेक हो गया कि अभी काम क्लास ले रहे हो, देन देयर इज अ सडन ब्रेक, नाउ यू आर ऑल आउटसाइड योर बिल्डिंग एंड देन एंजॉयिंग विद योर फ्रेंड्स एंड देन अगेन वेंट बैक, है ना। तो वो वाला सीन रहता है। अभी क्या होगा, लेट्स सी कि हाउ द प्रोग्राम इज गिविंग दैट। अब ये देखो 0 1 2 3 4। ठीक है। 5 ही बार वैल्यू प्रिंट हुई, क्योंकि 0 से प्रिंट होती है ना। अगर अपन यहाँ 1 लिखते तो 1 2 3 4 5 आता। तो एज सुन एज जैसे कि यहाँ पे वैल्यू 4 प्रिंट होगी, अब उसके बाद ये क्या करेगा, आई की वैल्यू को अपग्रेड कर देगा, 4 + 1 = 5, इधर जाएगा। इट विल चेक कि 4 इज 5 < 10। यस, 5 इज < 10, द कंडीशन इज ट्रू। अब ये फोर लूप के अंदर आया, इट इट चेक्स कि इस आई की वैल्यू क्या है, 5। इज आई वैल्यू इक्वल टू 5, जी हाँ, आई की वैल्यू इज इक्वल टू 5। तो वो क्या करेगा, ब्रेक, यानी कि नाउ वी आर इंस्ट्रक्टिंग पाइथन कि पाइथन लिसन, एज सून एज दिस कंडीशन अराइव्स यू डोंट हैव टू परफॉर्म एनी मोर टास्क, जस्ट कम आउट ऑफ द लूप इमीडिएटली। ठीक है। तो ब्रेक कीवर्ड आते ही इट विल इग्नोर दिस स्टेटमेंट एंड विल कम आउट ऑफ दिस लूप एंड रेस्ट ऑफ द लूप विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। ब्रेक के तरह ही एक वर्ड होता है कंटिन्यू। ठीक है। कंटिन्यू क्या करता है, लेट्स सी। अब देखो तुम्हें ना सारी वैल्यूज मिलेंगी, यू विल बी एबल टू सी ऑल द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ 5। और भाई ये रहा। ठीक है। 0 1 2 3 4 6 7 8 9, 5 वैल्यू इज नॉट हेयर। क्यों? क्योंकि वी आर सेइंग पाइथन की ए पाइथन लिसन, एज सून एज दिस 5 वैल्यूज अराइव। ठीक है। आई जैसे ही 5 होता है, इफ आई इज डबल इक्वल टू 5 का मतलब आई इज वैल्यू इज इक्वल टू 5, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब कि इसके नीचे का काम कुछ मत करना। ठीक है। स्किप ऑल द स्टेटमेंट्स बिलो दिस, जस्ट अपग्रेड द वैल्यू ऑफ आई टू 6, देन अगेन चेक हेयर, नाउ 6 इज लेस देन 10 and also i's value is 6, so I 6 is not equal to 5, then it will come to print statement, it will print the value of I that is 6, तो वो 6 प्रिंट हो जाएगी, मतलब एक स्टेप स्किप कर देता है। इट इज यूज फॉर स्किपिंग। ब्रेक इज यूज फॉर ब्रेकिंग द लूप। कंटिन्यू इज यूज फॉर स्किपिंग अ पार्ट ऑफ लूप, कि एक पर्टिकुलर स्टेप को स्किप कर देना। तो दिस इज व्हाट पासवर्ड कुछ मतलब पास बस पास है, तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। So these are all the things about loop. Now let's see what is the assignment key. Now you have to write a Python program to print a multiplication table for any number.
ये मैं एग्जांपल आई वाज गोइंग टू शो यू इट इन अ डेमो बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू ट्राइड इट योरसेल्फ, है ना? बस मैं तुमको हिंट दे देता हूँ कि लाइक यू हैव टू लूज लूप हियर, है ना? वो तो तुम्हें पता ही है। एंड देन हाउ यू विल बी प्रिंटिंग द टेबल इज लाइक कि मैंने बताया था कि कोई भी चीज प्रिंट करनी हो तो देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि प्रिंट। ठीक है, फॉर लूप के अंदर तुम्हें इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल आप टू की टेबल प्रिंट कर रहे हो, ठीक है? तो स्ट्रिंग लोगे, टू लोगे, टू तो हमेशा सेम रहना है, ये भी हमेशा सेम रहना है। ठीक है, टू इंटू, बस इधर आके आपकी वैल्यू चेंज होगी। तो यू विल कीप हियर इट इज एज इट इज, देन यू विल यूज कॉमा, देन यू विल यूज आई। आई मतलब कि आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कैसे? टू इंटू वन, टू इंटू टू, टू इंटू थ्री, टू इंटू फोर, है ना? इस तरीके से प्रिंट होनी चाहिए ना। तो यानी कि यहाँ पे आप अपना वेरिएबल लोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इधर वेरिएबल ले लेता हूँ अभी, ये लूप के अंदर आएगा तो थोड़ा उस पर दिमाग लगाना। एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट और चैट जीपीटी ऑल्सो, बट प्लीज ट्राई टू पुट योर लॉजिक फर्स्ट, पहले खुद सोचना एक बार। तो अब मान लो कि आई इक्वल टू वन है, ठीक है? और मैं आई की वैल्यू कैसे चेंज कर सकता हूँ डायनेमिकली? लूप के थ्रू, ये मैंने तुम्हें दिखाया ये आज। ठीक है, तो इधर लिखते हैं आई, ये हो गया आई। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि फिर से कोमा लगाना पड़ेगा, फिर अब मुझे चाहिए इक्वल टू। जैसे आप टेबल प्रिंट करते हो, ये लिखना जरूरी नहीं है, यू कैन सिंपली प्रिंट द लास्ट रिजल्ट ऑल्सो। आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ फॉर्मेटिंग इज बीइंग डन इन द दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसके बाद टैब, है ना, टू इंटू आई। तो नाउ यू एज यू कैन सी कि यहाँ पे इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स प्रिंट इट। अब देखो ये आया कैसे, टू इंटू वन इक्वल टू टू। तो this is the representation that you can follow to print the table. Even if you are not you don't want to print this 2 into I equal to 2, you can print only this multiplication. अब वो हर बार आई की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, जीरो कभी वन होगी, कभी टू होगी, कभी थ्री होगी। तो देन इट विल प्रिंट टू इंटू वन इक्वल टू टू, टू इंटू टू इक्वल टू फोर, टू इंटू सिक्स, थ्री इक्वल टू सिक्स। तो उस तरीके से प्रिंट होगा। बट प्लीज ट्राई दिस ऑल्सो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हो, अच्छी बात है। अदरवाइज यू कैन प्रिंट दिस वैल्यू ओनली, तो वो भी टेबल प्रिंट हो जाती है। ओके, तो दिस इज योर असाइनमेंट। ऐड आ गया। So with this, our class is basically we are done for today. If you have any doubt, please feel free to ask. Otherwise, we can wind up this call. And then these are the summary and take up is key like loops make repetitive tasks efficient, for loop, while loop, practice both build strong. ये तो अपने देख लिया है. And then for any help and support, please contact us here. And then thank you for joining today's session.